بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ آج ہم آ، اس ویک کے دوسرے سیشن کی طرف ہیں. جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پہلے سیشن کے اندر ایک بہت ہی زبردست اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک انووا کو اسٹارٹ کیا تھا. آج اسی کو ہی ہم کنٹینیو کریں گے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ 2 ویک ہیں ہمارے، جو کرنٹ ویک ہے اور جو کمنگ ویک ہے، اس میں ہم ایپ ڈسٹریبیوشن کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کریں گے. پھر انووا جسے انالیسس آف ویریئنس کہا جاتا ہے اسے دیکھیں گے. اس کے بعد ملٹیپل کمپیریزن ٹیسٹ پرفارم کریں گے، اور آخر میں انووا کا نان پیرامیٹرک ایکوولنٹ اسکل ویلیز ٹیسٹ بھی دیکھیں گے. لیکن کرنٹ ویک میں ہم یا آن گوئنگ ویک میں ہم شروع کے 2 پوائنٹس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ایپ ڈسٹریبیوشن اور انووا. اور نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم ملٹیپل کمپیریزن ٹیسٹ اور پروسکل ویلیز ٹیسٹ کو دیکھیں گے. اس سے پہلے کہ میں آج کے لیکچر کی سلائڈس آپ کو دکھاؤں، میں چاہوں گا کہ لاسٹ لیکچر میں جو کچھ ہم نے پڑھا اسے کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ ہر ویل نون ڈسٹریبیوشن کی طرح ایف ڈسٹریبیوشن کی بھی ایک میتھمیٹیکل فارم ہوتی ہے، جو کہ آپ کو اس پر اسکرین پر نظر آ رہی ہے. اس میتھمیٹیکل فارم سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس ایف ڈسٹریبیوشن میں 2 پیرامیٹرز ہوتے ہیں، نیو ون اور نیو ٹو. یہ دونوں ڈگری آف فریڈمز ہوتے ہیں. نیو ون ڈگری آف فریڈم ہے نیومینیٹرز کی، اور نیو ٹو ڈگری آف فریڈم ہے ڈینومینیٹر کی. جبکہ جو ویریبل آف انٹرسٹ ہے وہ یہاں پر 0 سے پلس انفینٹی تک ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ایف ڈسٹریبیوشن کو ہم کس طریقے سے لکھتے ہیں. ایف پیرنتھیسس میں دونوں ڈگری آف فریڈم، نیومریٹر کی پہلے ڈینومینیٹر کی بعد میں. اس کے بعد ہم نے اس کی کچھ پراپرٹیز دیکھی تھیں کہ یہ کنٹینیوس ہوتی ہیں، پازیٹیولی اسکیوڈ ہوتی ہے کائی اسکوائر ڈسٹریبیوشن کی طرح. جیسے کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ریٹ ٹیل اس کی لانگ ہوگی. لیکن جیسے جیسے ڈگری آف فریڈمس لارج ہوتی چلی جاتی ہیں، ایپ ڈسٹریبیوشن نارمل ڈسٹریبیوشن کو اپروچ کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کے بعد ہم نے اس کا مین اور ویریئنس اور ماڈ دیکھا. ہم نے ایک بڑی خاص پراپرٹی دیکھی تھی ایپ ڈسٹریبیوشن کی، کہ اگر کوئی بھی ویریبل ایکس ایپ ڈسٹریبیوشن کو فالو کرتا ہے نیو ون اینڈ نیو ٹو ڈگری آف فریڈم، تو اس ایکس ڈسٹریبیوشن کا جو ایکس ویریبل کا جو ریسیپروکل ہے یعنی 1/x، یہ بھی ایف ڈسٹریبیوشن کو فالو کرے گا. لیکن اس کی ڈگری آف فریڈم جو ہوں گی وہ ایکس ویریبل کی ڈگری آف فریڈم کے لحاظ سے انورس ہو جائیں گی، یعنی رولز بدل جائیں گے. اس کی ڈگری آف فریڈم نیومریٹر کی نیو ٹو ہو جائے گی اور ڈینومینیٹر کی نیو ون ہو جائے گی. اس کے بعد ہم نے ایپ ڈسٹریبیوشن کے ٹیبلز آپ کو دکھائے تھے. ایپ ڈسٹریبیوشن کے ٹیبل کو دیکھنے کے لیے ہم 3 باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا. نیو ون پتہ ہونا چاہیے، نیو ٹو پتہ ہونا چاہیے، اور لیول آف سگنیفیکینس بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس جو ہے ڈسٹریبیوشن کی ٹیبل میں ہم جو 5% لیول آف سگنیفیکینس پہ بھی ہیں، 2.5% پہ بھی ہیں، اور 1% پہ بھی ہیں. اور یہ آپ کو ڈسٹریبیوشن ایف ٹیبل نظر آ رہا ہے، جس میں نیو ون جو ہے وہ ہم ٹاپ موسٹ رو سے سلیکٹ کرتے ہیں، نیو ٹو جو ہے ہم لیفٹ موسٹ کالم سے، اور جہاں ہمارے ریکوائرڈ یا ڈیزائرڈ نیو ون نیو ٹو ملتے ہیں اس سیل میں لکھی ہوئی ویلیو ہماری ایف کی ویلیو ہوتی ہے ایٹ دا گیون لیول آف سگنیفیکینس. اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ ساری سلائڈس میں نے جلدی سے گزارا کہ ان کے اوپر ہم بات کر چکے تھے. اب جو ہماری تفصیلی بات ہو رہی تھی وہ انالیسس آف ویریئنس کے اوپر ہو رہی تھی، جسے ان شارٹ انووا بھی کہتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمیں 2 سیمپل کے ذریعے 2 پاپولیشن کے مین کی ایکویلٹی کو چیک کرنا ہو یا ان مین کو کمپیئر کرنا ہو تو ہم ٹی ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر یہ جو پاپولیشن ہے وہ 2 سے زیادہ ہو جائے، 3 یا 4 یا 5 یا 10 ہو جائیں، تو پھر ہم ان کی مین کو کس طرح سے سائملٹینیسلی کمپیئر کریں گے
تو ایک طریقہ تو ہے کہ ملٹیپل ٹی ٹیسٹ پرفارم کیے جائیں، لیکن اوبویسلی یہ نہ صرف ٹائم کنزیومنگ ہوگا بلکہ بہت زیادہ ٹیڈیس بھی ہو. جیسے اگر صرف 4 ہی پاپولیشن ہو تو ہمیں 6 ٹی ٹیسٹ رن کرنے ہوں گے، اور اگر 10 پاپولیشن ہو تو 45 ٹی ٹیسٹ رن کرنے ہوں گے، تو اوبویسلی بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے. کیا اس کا کوئی ہمارے پاس آلٹرنیٹیو ہوگا جناب؟ اور وہ آلٹرنیٹ ہے انالیسس آف ویریئنس، جسے ہم اینووا کہتے ہیں. اینووا ایک ایسی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم ملٹیپل پاپولیشن کی مین کو کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ ٹیکنیک جو ہے وہ جینیس سر آر ایم فشر نے ڈیولپ کری تھی اور انٹروڈیوس کی تھی. انالیسس آف ویریئنس کے اندر جو امپورٹنٹ بات ہے جیسا میں نے کہا، اس میں ہم ریلیٹیو سیورل پاپولیشن مینس کی ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ نل ہائپوتھیسس ہوگا کہ اگر یہ پاپولیشن تو تمام پاپولیشن کی مینس برابر ہوں گے، یعنی میو ون ایکولس ٹو میو ٹو ایکولس ٹو میو تھری اینڈ سو آن اپ ٹو میو کے. اور الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس کیا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ ان میں سے دو جو پاپولیشن مین ہے وہ برابر نہیں ہے. اب اس کانسیپٹ کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو انالیسس آف ویریئنس جو ہے وہ بڑا ہی کلوزلی ریلیٹڈ ہوتا ہے ایک بالکل آ، الگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹڈی اور اسٹیٹسٹکس جیسے ہم ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. اور جیسا میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی کہا تھا کہ جو لوگ ماسٹر کر رہے ہوتے ہیں اسٹیٹسٹکس میں، وہ کم سے کم 2 کورسز جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے پڑھ رہے ہیں. اور آلدو ہم تو صرف نام کی حد تک اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اگلی کچھ 2-3 سلائڈس جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کیا ہوتا ہے اور اس میں استعمال ہونے والی ٹرمینالوجیز کی ہیں جنہیں ہم کوئکلی جو ہے وہ اسکپ کر رہا ہوں. نا یہ وہ اگزامپل ہے جس کے ذریعے ہم نے انالیسس آف ویریئنس کو سمجھنے کی کوشش کری تھی. سینٹر میں وہ کہتا ہے کہ این ایکسپیریمنٹ واز کنڈکٹیڈ ٹو کمپیئر دی yields آف 3 varieties آف potatoes. یعنی 3 طرح کی پوٹیٹوز کی ورائٹیز ہیں اور ان سے جو yield مل رہی ہے اس yield کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں. اب ایچ ورائٹی ایز اسائن ایٹ رینڈم ٹو ایکول سائز پلاٹس کو اٹھائیں. اب ہر ورائٹی جس کو آگے جا کے ہم نام دیں گے اے بی سی کا، ہر ورائٹی کو ہم 4 مرتبہ جو ہے وہ رینڈملی اسائن کر رہے ہیں ایکول پلاٹ سائز پر. اور ان سے جو ہمیں yield مل رہی ہے وہ اس ٹیبل میں موجود ہے کہ ورائٹی اے کو جب ہم نے پہلی بار سو کیا اس سے جو yield ملی وہ 23 تھی، دوسری بار 26، تیسری بار 20 اور چوتھی بار 17. اسی طرح ورائٹی بی جو ہے اس سے جو yield ملی ہمیں 4 الگ الگ پلاٹس پہ وہ 18، 28، 17 اور 21. اور یہی بات آپ ورائٹی سی کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں. اب ہمیں ٹیسٹ یہ کرنا ہے کہ یہ تینوں ورائٹیز ہیں پوٹیٹوز کی، یہ ڈفرینٹ نہیں ہیں ییلڈنگ کیپیبلٹی سے، یعنی ان کی جو مین yield ہے تینوں ورائٹیز کی وہ برابر ہے. اب the first thing to note that this is an example of CR design. بھارت یا آپ جو CR design پڑھا ہوگا وہاں دیکھ لیے گا. Now, in order to test the hypothesis that the mean yields of the 3 varieties of potato are equal, we carry out the 6-step hypothesis testing. وہی hypothesis testing کا جو conventional procedure ہے اسی کو ہم فالو کریں گے، جس میں 5-6 پری ڈیفائنڈ اسٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم نل ہائپوتھیسس کو اسٹیبلش کرتے ہیں جو یہاں انووا کی شکل میں کیا ہوگا کہ تینوں ورائٹیز کی جو مین ہے یا مین yield ہے وہ برابر ہے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے آلٹرنیٹیو ہائپوتھیسس کیا ہوگا کہ تینوں کی تینوں مین برابر نہیں ہے، مے بھی شاید کوئی ایک جو ہے وہ الگ ہوگا، ان میں سے شاید 2 الگ ہوں، شاید تینوں الگ ہوں، لیکن کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں ناٹ آل 3 مینس آر ایکول. اب لیول آف سگنیفیکینس جو ہے وہ 0.05 کے اوپر ہم نے سیٹ کیا ہے. اس کے بعد جو ٹیسٹ اسٹیٹسٹک آتی ہے وہ یہاں پر ایف ڈسٹریبیوشن کو فالو کرتی ہے. اور جو ایف ہمارے پاس یہ ریشو ہوتا ہے 2 ویریئنس کی، اور یہاں ویریئنس کے لیے ہم مین اسکوائر
इस्तेमाल करेंगे। एक बार मीन स्क्वायर होगा ट्रीटमेंट का और एक बार मीन स्क्वायर होगा एरर का। अभी आगे पता चल जाएगा ट्रीटमेंट और एरर से क्या मुराद है। अगर तो ये एच नॉट हमारा 2 है तो ये जो हमने एफ लिखा है ये फिर एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, जिसमें जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, न्यूमन जो है वो ट्रीटमेंट की नहीं, जो न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी जो हमेशा के माइनस वन। ये हमारे पास है कि कितनी हमें कैटेगरी या वैराइटीज़ दी गई हैं। इस मिसाल में वैराइटीज़ 3 है तो के 3 हो जाएगा, जहाँ तक न्यू वन 3 माइनस वन मतलब 2 होगा। जबकि न्यू टू जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये, जो डिनोमिनेटर है एफ के फार्मूले का वो कौन है, एरर है। और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो एन माइनस के। यहाँ एन का मतलब सैंपल साइज है और आपने देखा था कि सैंपल में हमारे 12 ऑब्जर्वेशन थे तो 12 माइनस 3 9 हो जाएगा। तो अगर इस सवाल में हमें एफ की टेबल देखनी हो तो हमें अल्फ़ा चाहिए वो 0.05 है, न्यू वन और न्यू टू भी चाहिए। न्यू वन हमारे पास 2 है तो इस न्यू वन 2 को हम देखेंगे टॉप मोस्ट रो में और न्यू टू 9 से देखेंगे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में। तो जहाँ न्यू वन 2 और न्यू टू 9 मिलेगा वहाँ देखेंगे कि क्या वैल्यू लिखी हुई आ रही है, वो हमारी एफ की टेबुलेटेड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई। अब इसमें हम जब कंप्यूटेशन करेंगे कि एफ की टेबलेटेड वैल्यू तो आ गई, लेकिन इस एफ को हमने कैलकुलेट भी करना है। तो जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि एफ को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 मीन स्क्वायर चाहिए, वन फॉर द ट्रीटमेंट एंड वन फॉर द एरर। उन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक टेबल बनाना होता है जिसे हम एनोवा टेबल कहते हैं। ये एनोवा टेबल कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर काफ़ी तफसीली आपसे बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर व्हाट इज मेंट बाय द एनोवा टेबल, द एनालिसिस ऑफ वेरियस टेबल। In the case of the completely randomized design, the ANOVA table is a table of the type given below. इस तरह का ये ANOVA table होता है जिसमें 5 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में सोर्स ऑफ वेरिएशन है, दूसरे में डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तीसरे में सम स्क्वायर्स हैं, चौथे में मीन स्क्वायर्स हैं और आखिरी कॉलम में एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू मौजूद होगी। अब इस टेबल का जो पहला कॉलम है सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, इसका क्या मतलब है इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टेबल स्टेप बाय स्टेप। द वेरी फर्स्ट कॉलम इज हेडेड source of variation and under this heading we have three distinct sources of variation। आपने देखा होगा कि 3 सोर्सेज थे कि जो हमारे पास एरर है वो बिल्कुल आखिर में था कि टोटल कितना है। यहाँ total stands for the overall variation in the 12 values that we have in our data set। आपने हमने देखा था ये जो 12 हमारे पास प्लॉट के अंदर यील्ड आई थी पोटैटो की, साफ नज़र आ रहा है कि इनमें डिफरेंस मौजूद है, इनमें वेरिएशन मौजूद है। तो अगर आप किसी तरीके से कि टोटल 12 के 12 प्लॉट की वेरिएशन निकाल लें तो वो हमारे पास टोटल वेरिएशन आ जाएगी। As you can see, the values in our data set are 23, 26, 20, 17, 18, 28, and so on. Evidently, there is a variation in these values, and the term total in the lowest row of the ANOVA table stands for this overall variation. The term variation between treatments stands for the variability that exists between the three varieties of potato that we have shown in the plot. In this example, the term treatment stands for the three varieties of potato that we are trying to compare. अब देखिए वेरिएशन बिटवीन ट्रीटमेंट, पहली बात यहाँ ट्रीटमेंट का मतलब होता है, इस मिसाल में ट्रीटमेंट का मतलब है वैरायटी ऑफ पोटैटो, वो कितनी है 3 है। तो वैरायटी ए के लिहाज से वैरायटी बी में भी कुछ वेरिएशन है, बी के लिहाज से सी में भी आ रही है, सी के लिहाज से ए में भी आ रही है। यानी अगर हम सिर्फ वैरायटी ए को देखें और वैरायटी बी को देखें, ए और बी में भी कुछ फ़र्क आ रहा है, ये कहलाएगी वेरिएशन बिटवीन ट्रीटमेंट। और इसमें एक अहम नुकता बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, इट इज़ पॉसिबल दैट द थ्री वेराइटीज़ और एटलीस्ट टू ऑफ द वेराइटीज़ आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर विद रिगार्ड टू देयर yielding capabilities। This variability between the varieties can be measured by measuring the difference between the mean yields of the three varieties। ठीक है।
अब जो आखिरी सोर्स ऑफ वेरिएशन है, दिस इज द वेरिएशन विद इन द ट्रीटमेंट्स. This point to the fact that even if only one particular variety of the drug is shown more than once, we do not get the same yield every time. क्या कह रहा है कि अगर एक ही वैरायटी भी आप बोएं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो यील्ड आए वो एक जैसी. मिसाल के तौर पे अगर एक ही प्लॉट में हम एक ही सीड इस्तेमाल करते हैं मैंगो के लिए, तो ज़रूरी है कि उस मैंगो के जब दरख्त लगें तो हर दरख्त से जो मैंगो मिले उसका वेट बराबर हो, और हर दरख्त की छोड़ने से एक ही दरख्त पर आने वाले मैंगो जो हैं उनका वेट बराबर हो. नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं. तो इसका मतलब है एक दरख्त के मैंगो और दूसरे दरख्त के मैंगो के दरमियान तो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक ही दरख्त पे लगने वाले मैंगोज में भी डिफरेंस हो सकता है. ठीक है भाई, वो ऑब्वियसली वेरिएशन विद इन के कॉन्सेप्ट में चला जाएगा. जैसे आप देख सकते हैं कि सिर्फ आप वैरायटी ए की यील्ड देखें, चार प्लॉट में वो 23, 26, 27 साफ दिख रहा है कि चारों आपने चारों प्लॉट में ए ही वैरायटी इस्तेमाल करें, उसके बावजूद भी चारों की यील्डिंग कैपेबिलिटीज़ वो अलग अलग है. इसका मतलब है कि वेरिएशन जो है वो वैरायटी के अंदर भी मौजूद है. तो वैरायटी के दरमियान तो है लेकिन वैरायटी के अंदर भी मौजूद है. In this example, variety A was sown 4 times and the yields were 23, 26, 20 and 17, all different from one another. Similar is the case with variety B as well as variety C. The variability in the yields of variety A can be called variation within variety A. Similarly, B में जो होगी variation within variety B और C में जो होगी variation within variety C हो जाएगा. Now we can see that the term variability within treatments stands for the combined effect of the above mentioned three variations. The variation within treatment is also known as the error variation. इस को हम error variation क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है. This is so because we can argue that if we are showing the same variety in four plots which are very similar to each other, then we should have obtained the same yield from each plot. अब एक आम शख्स यही कहेगा कि अगर हम चारों प्लॉट में जो कि एक जैसे हैं, यानी एरिया वाइज भी, फर्टिलिटी वाइज भी और सन लाइट एक्सपोजर के लिहाज से भी, और उनमें हम एक ही वैरायटी लगा रहे हैं, तो होना तो यही चाहिए कि सब में जो यील्ड आए वो बराबर हो. लेकिन हज़ारों बार आप ये सुन भी चुके हैं, देख भी चुके होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि सब में जो यील्ड हो पोटैटो की वो बराबर हो. If it is not coming out to be the same every time, we can regard this as some kind of error. तब हम कहते हैं सब कुछ जब सेम है उसके बावजूद यील्ड सेम क्यों नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही, कुछ एरर हो रहा है. तो इसलिए हम इसे एरर वेरिएशन भी कह रहे होते हैं. अब वही टेबल लेनोवा टेबल था, उसका पहला कॉलम था सोर्स ऑफ वेरिएशन. सोर्स ऑफ वेरिएशन में हमारे पास तीन चीज़ें थी: वेरिएशन बिटवीन ट्रीटमेंट्स यानी वैराइटीज, एंड वेरिएशन विद इन ट्रीटमेंट्स यानी वैराइटीज. जो सेकंड कॉलम था उस सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ था, तो उसमें हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम स्क्वायर और मीन स्क्वायर को लिखा था जैसे नज़र भी आ रहा है. तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है बिटवीन ट्रीटमेंट्स की, वो क्या होगी, जितने ट्रीटमेंट्स हैं उसमें से एक कम कर दें. सिमिलरली जो हमारे पास वेरिएशन है ये टोटल, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जितनी टोटल ऑब्जर्वेशन है उसमें से एक कम कर दें. अब अगर हमें टोटल की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है और बिटवीन ट्रीटमेंट्स की भी पता है, तो टोटल में से बिटवीन ट्रीटमेंट वाले को माइनस करेंगे तो एरर वाली बन जाएगी. यानी अगर ये जो n था ये 12 था, पिछली मिसाल है, तो टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 12 माइनस 1 यानी 11, और बिटवीन ट्रीटमेंट्स की एक 2 माइनस 1, ये कितना है 3, 3 माइनस 1 2, तो टोटल है 11 और बिटवीन ट्रीटमेंट्स है 2. तो विद इन ट्रीटमेंट्स क्या होगी, n माइनस के यानी 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा. तो एरर की जो वेरिएशन है इसमें 9 जो है वो आइटम्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम मौजूद है. अब आप देख सकते हैं कि
The point to understand is that the sources of variation corresponding to treatments and error will be measured by computing quantities that are called mean square, and mean square can be defined as, अभी जो मीन स्क्वायर होता है ये कैसे निकाला जाता है, ये निकालने के लिए आपको सम ऑफ स्क्वायर निकालना होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी होगी। अब जो ट्रीटमेंट का मीन स्क्वायर है इसमें ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर आएगा और डिवाइड बाय ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, और एरर का जो मीन ऑफ स्क्वायर है उसमें एरर का सम ऑफ स्क्वायर आएगा और एरर ही की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। It has been mathematically proved that with reference to analysis of variance pertaining to the completely randomized design (CR), the degrees of freedom corresponding to the treatment sum of the squares are k minus 1, and the degrees of freedom corresponding to the error sum of the squares are n minus 1. वही वाली बातें जो बताई गई है आपको कि जो ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो k माइनस 1 है, और जो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं एरर के उसकी n माइनस की, तो वो अगर आप यहाँ लिख दें और ये बेहतर हो जाएगा। अब अगर आपको मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट या मीन स्क्वायर एरर चाहिए तो दोनों के फॉर्मूले में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो हमें पता लग ही जाएंगे, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर ये दोनों चीज़ें हमें नहीं पता। तो हाउ डू वी कंप्यूट द वेरियस सम्स ऑफ स्क्वायर? The three sums of squares occurring in the third column of the above enumerated table are given by, ये क्या है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर है और जिसे हम TSS कहा है, ये बराबर होगा कि तमाम ऑब्जर्वेशन जो हैं उनका स्क्वायर करें, ऐड करें और उन्हें आप करेक्शन फैक्टर में से माइनस करें। यहाँ ये जो CF है ये करेक्शन फैक्टर है, ना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। करेक्शन फैक्टर है जो बराबर होता है टी डॉट डॉट स्क्वायर ओवर एन। यहाँ टी डॉट डॉट जो है वो ग्रैंड टोटल को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रैंड टोटल को स्क्वायर करें और उसे एन से क्या कर दें, डिवाइड करें। ठीक है भाई। एंड आर डिनोट्स द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज पर, इसको देख लीजिएगा। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट जैसे हम SST कह रहे हैं, ये किसके बराबर रहेगा? यहाँ आप क्या कर रहे हैं, टी डॉट जे का स्क्वायर करके आर से डिवाइड कर रहे हैं और फिर सम दे रहे हैं और एंड में कोफैक्टर से माइनस कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूले अगर आपको अभी याद नहीं है तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि याद हो। It should be noted that this example pertains to that case of the CR design with each statement being repeated equal number of times. अब ये एक अलग दास्तान है। क्या आपने देखा होगा वैरायटी ए भी 4 बार हमने शो करी, वैरायटी बी भी सी भी, पर मुमकिन ऐसा है कि वैरायटी ए 4 बार हो गई, वैरायटी बी शायद 10 बार कर दी और वैरायटी सी सिर्फ 2 बार कर दी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल हम अभी इस तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। With reference to the CR design, it should be noted that in some situations, the various treatments are not repeated in equal number of times. ठीक है, वो बता रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं आपको। So going back to the formula of various sums of square, sum of square for error is given by. तो error का sum of square बड़ा आसान है, चाहे error की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, चाहे error का sum of square हो, आप टोटल में से हमेशा ट्रीटमेंट वाले डेटा को माइनस कर दें तो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर आ जाएगा, जिसे हम SSE कहते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है ये इन दोनों ट्रीटमेंट के सम ऑफ स्क्वायर और एरर के सम ऑफ स्क्वायर का एडिशन होगा, और यही रिलेशन जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए भी मौजूद रहेगा। It can be shown that the degree of freedom pertaining to the n minus 1, वो यहाँ लिख दिया गया। The notation and terminology given in the above equation relate to the following table. अब ये देख लीजिए आप कि जो हमारे पास वैरायटी ए बी सी थी, इनकी वही 12 वैल्यूज़ हैं, लेकिन हर वैल्यू के साथ ब्रैकेट में एक नंबर है। ये नंबर क्या है? जो भी ब्रैकेट के बराबर नंबर लिखा हुआ है जो कि यील्ड है उसका स्क्वायर है।
23 का स्क्वायर करेंगे 529, 26 का स्क्वायर करेंगे 676, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 17 का स्क्वायर करेंगे 289 और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब इस टेबल में कुछ आपने अपने पास से काम भी करना है, जैसे 3 रॉज आपने ऐड करनी है। पहली का नाम होगा टी डॉट जे, दूसरी का नाम होगा टी डॉट जे का स्क्वायर और तीसरी का नाम होगा सिग्मा एक्स आई जे स्क्वायर। ठीक है, अब ये टी डॉट जे का क्या मतलब है, देखिए हमेशा टेबल में जो सब्सक्रिप्ट होते हैं उनमें से जो पहला सब्सक्रिप्ट होता है वो रॉ नंबर को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा कॉलम को। अगर तो रॉ की जगह पे डॉट लगा इसका मतलब है सारी रॉस कंसीडर की, और अगर कॉलम की जगह डॉट लगा तो इसका मतलब सारे कॉलम आपने कंसीडर कर दिया। तो आप देखिएगा कि टी डॉट जे, यहाँ जे जो है वो कॉलम का नंबर है। अगर मैं जे की जगह 1 लिख दूँ यानी टी डॉट 1, तो कह रहा है सारी रॉस जो पहले कॉलम में आ रही है उन्हें सम करें। पहले कॉलम में क्या है भाई, पहली रॉ 23 है, फिर 26 है, फिर 20 है, फिर 17 है, इन्हें ऐड करेंगे तो 86 आएगा। सिमिलरली अगली बार आप जो बी है इसकी वैरायटी सारी ऐड करेंगे तो 84 आएगा, सी की वैरायटी ऐड करेंगे तो 67 आएगा। अब ये जो टोटल आए इन सबका भी एक टोटल है जो 237 है, जिसके लिए हमने एक कॉलम ड्रॉ किया जिसका नाम टोटल लिखा है। अब ये जो 86 या 84 है, 67 है, 237 आए, हम चाहते हैं इसका स्क्वायर करें। स्क्वायर करेंगे 86 का तो 7396 आएगा और इसी तरीके से बाकी का भी आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एक्स आई जे का स्क्वायर हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 12 के 12, इनका सम करना। इनका सम करने के भी आसान तरीका ये है कि पहले ए वैरायटी वाले सारों को ऐड कर लें तो 1894 आएगा, तो बी वैरायटी वालों को ऐड कर लें तो 1838 आएगा और फिर सी वैरायटी वालों को ऐड कर लें तो 1221 आएगा। अब ये जो आखिरी हमारे पास रॉ आई, इस सारे टोटल का अगर हम टोटल करेंगे तो 4953 आ रहा है हमारे पास, और ये बात कॉलम से भी साबित हो रही है। तो 4953 ऑलमोस्ट 5000, तकरीबन 5000 जो है वो हमारे पास ग्रैंड टोटल आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द एंट्रीज इन द बॉडी ऑफ द टेबल दैट इज 23, 26, 20, 17 and so on are the yields of the three varieties of potato that we had shown in the 12th form. ठीक है, the entries written in brackets, the entries written in brackets next to the above mentioned data values are the squares of those values। बता दी आपको ये बात, ठीक है। एडिंग ऑल दी स्क्वायर भी ऑप्टेन, ये मिल जाएगा आपको, जो कि आपको टेबल में भी अब नज़र आ रहा है। तो लास्ट कॉलम का टोटल करें या लास्ट रॉ का टोटल करें, ग्रैंड टोटल बराबर ही आएगा, जो इस वक्त 4953 रुपये 4953 का बन रहा है। अब ये बता रहे हैं टी डॉट जे का क्या मतलब है। टी डॉट जे का मतलब है टोटल ऑफ द जेथ कॉलम। अब जेथ कॉलम में बहुत सारी रॉज आ रही है ना, कॉलम तो जे आ रहा है, यानी टी डॉट अगर ये 4 होता, टी डॉट 4 का मतलब है चौथे कॉलम की तमाम वैल्यूज़ का सम। अब चौथे कॉलम में कॉलम तो सिर्फ 4 ही है, फिर वैल्यूज़ बाकी सारी कहाँ होंगी, वो सारी वैल्यूज़ होंगी कहाँ, रॉज में। ठीक है, तो इसी को उसने डिफाइन किया है आप, ठीक है जी। आपके पास जो है मज़ीद उसने टेबल को बेहतर करने की कोशिश करी है। अब इस टी डॉट जे अगर सारे आ जाते हैं, टी डॉट 1, टी डॉट 2, टी डॉट 3, फिर इनका सबका टोटल कर लें तो 237 आ रहा है। इसको हम टी डॉट डॉट भी कह सकते हैं या ग्रैंड टोटल भी कह सकते हैं। The double dot in the notation T dot dot indicates that summation has been carried out over I as well as over J। अब क्या है, T dot J आए आपके पास, इनका भी अगर आप स्क्वायर कर लें तो 18,941 आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये मौजूद है सेकेंड लास्ट रॉ में टी डॉट जी का स्क्वायर। तो पहले वाले को करा तो 7,396 आया है,
दूसरी वैरायटी में करा तो 7,056 आया, तीसरी में करा 4,489 आया, उसके बाद फिर सबका ग्रैंड टोटल 18,941 आया। Now that we have obtained all the required quantities, we are ready to compute the SS total, SS treatment and SS error. सारी चीज़ें मौजूद हैं। SS total के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले को फैक्टर निकालना होगा। को फैक्टर क्या होता है कि हमारे पास जो टोटल रहेगा उसका स्क्वायर करें और जितने ऑब्जर्वेशन में उसे डिवाइड करवा दें। तो हमने टी डॉट डॉट निकाला था, 287 आया था, इसका स्क्वायर करें और जितने भी आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं 12 उनसे डिवाइड करवा दें। करेक्शन फैक्टर आ रहा है 4680.75। अब मेरे लिए टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। यहाँ मुझे जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल आपके लीजिए कि फ्रूट्स हैं या पोटैटोज़ हैं, जो भी हैं, उन सबके को स्क्वायर करें, सम करें और उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस करें। तो सिग्मा डबल सिग्मा एक्स आई जे स्क्वायर ये 4,953 था और करेक्शन फैक्टर आपके पास 4,680.75 आया। तो जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है वो 2,072.25 आया। सिमिलरली सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट है आपके सामने है, इसका फार्मूले में वैल्यूज लगवाएं तो ये 54.50 आ जाएगा। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जिसे हम SSE कहते हैं, अगर आप निकालना चाहते हैं तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से ट्रीटमेंट के सम ऑफ स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 217.75 होगा। अब in this example here n equals to 12 and k is equals to 3, hence n minus 1 12 है, k minus 1 2 है और n minus k 9 है। तो substituting the above sums of square and degree of freedom in the ANOVA table we obtain। ये कुछ इस तरह का टेबल आ गया हमारे पास। अब मीन स्क्वायर अगर हमें निकालना है ट्रीटमेंट का और एरर का, तो बड़ा आसान है ये। आसानी क्या है हमारे पास कि जो जिसका मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट निकालना है उसके सम ऑफ स्क्वायर को उसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दें। तो आप देखिए कि जो बिटवीन ट्रीटमेंट्स है इसका सम ऑफ स्क्वायर है 54.50। अगर इसको इसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं तो ये 27.25 आ जाएगा। और अगर एरर के लिए हम ये काम करते हैं तो फिर वो 24.19 आएगा। और अब अगर आखिर में हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना चाहें तो आपको कहा था कि एफ जो है वो क्या करता है, वो बताता है आपको कि जो टोटल हमारे यहाँ जो है वो वेरिएशन है मीन स्क्वायर बिटवीन ट्रीटमेंट्स है। जब उसे हम डिवाइड करते हैं मीन स्क्वायर फॉर एरर तो हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाती है। तो एक बार फिर नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मौजूद है और तीसरे स्टेप में हमें ये एफ को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम अब एनोवा टेबल जो है वो यहाँ बनाते हैं और उस एनोवा टेबल से हमें मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट मिला था 27.25 और मीन स्क्वायर एरर मिला था 24.19, डिवाइड करवाया तो 1.13 आया। So we insert this computed value of f in the last column of the ANOVA table and thus obtain। अब 1.13 आ गई, जबकि जो टेबल से हमने वैल्यू देखी थी वो ये नहीं थी। तो आगे वो अब ये कह रहे हैं हमसे आगे तो आपने एफ कैलकुलेट किया वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है, तो यकीनी तौर पर फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैं और आप देख सकते हैं कि जो एफ का टेबल है उसे देखने के लिए हमें अल्फ़ा चाहिए और अल्फ़ा जो है वो आपको बराबर 0.05 दिया था और फिर दो डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए न्यू वन न्यू टू। न्यू वन जो है वो के माइनस वन है, के थ्री था, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और जो न्यू टू है वो एन माइनस के स्मॉल है।
स्मॉल एन अगर 12 है और के 3 है तो 12 माइनस 3 यानी 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ज़रा देख लीजिए कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.05 है और जो न्यू वन है वो 2 आ गया और न्यू टू 9 आ गया। तो हम टेबल में जाके जब इस एफ की वैल्यू को ढूंढेंगे तो वो हमें 4.26 मिल जाएगी। अब आखिरी स्टेप है कि रिजल्ट क्या निकला, क्योंकि कंप्यूटेड वैल्यू जो है वो 1.13 है, वो किसी तरीके से भी टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी नहीं, लिहाजा ये क्रिटिकल रीजन में लाई नहीं कर रही बल्कि नॉन क्रिटिकल रीजन में एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है। लिहाजा हम ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे कि जो तीनों वैराइटीज़ हैं तो टोटल यील्ड की उनका एवरेज रेट जो है वो बराबर है। ठीक है, अब in this course we will not be discussing the details of the mathematical points underlying Hermite analysis of variance that is applicable in the case of the completely randomized example. One important point that the student should note is that the ANOVA technique being presented here is very randomly followed. ये बहुत अहम स्लाइड है क्योंकि जब आप क्रूसिकल वैली टेस्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में तो वहाँ ये स्लाइड बहुत ज़्यादा जो है वो काम आएगी। देखिए, एनोवा जो है वो एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, जैसे जेड है, टी है, एनोवा भी एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। तमाम पैरामीट्रिक टेस्ट जो है और वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट अजम्पशंस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो एनोवा भी क्योंकि पैरामीट्रिक है तो ये भी जो है वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट जो अजम्पशंस हैं उन्हें फॉलो करेगा। वो अजम्पशंस क्या हैं ये आपके जहन में होने चाहिए। पहला अजम्पशन है कि जितनी भी पॉपुलेशन हैं और जिनकी मीन्स को आप कंपेयर कर रहे हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। इस बात को ये भी हम कह सकते हैं कि जो सैंपल्स आप ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से होने चाहिए। दूसरी बात कि जितनी भी पॉपुलेशन हैं उन सबके वेरिएंस बराबर होने चाहिए। अच्छा, मैं आपकी नॉलेज को बता रहा हूँ कि अगर डिफरेंट पॉपुलेशन की वेरिएंसेस बराबर हों तो इस प्रॉपर्टी को हम होमोसिडास्टिसिटी कहते हैं। और अगर यही वेरिएंसेस बराबर ना हो, मतलब एक भी अगर अनइक्वल हुआ तो फिर वो हेटेरोसिडास्टिसिटी कहला सकता है। तो वेरिएंसेस सारी पॉपुलेशन के बराबर होंगे। अब आखिरी पॉइंट क्या है कि जो सैंपल्स आप निकालेंगे के पॉपुलेशन से, वो सैंपल रैंडमली और इंडिपेंडेंटली आपने ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, तो ये तीन जो है वो असम्पशन देंगे। यहाँ पर मैं इस मीटिंग को जो है वो एंड करता हूँ। इंशाल्लाह जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें हम आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।